कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे यही बिजनेस करना है? मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था कपड़ों में. My father opened a store called Perfection House here in Sector 17 in 1985. My degree is in business administration. I wanted to get a job and do marketing. But my father was very old school and he said लड़कियां काम नहीं करती हैं. अभी रिसेंटली आपने हिमाचल सीएम की वाइफ को भी आपने पूरा उनके लिए तैयार किया था. उनका बनाते रहो वही पुरानी लोग. आज भी कई लोग आके कहते हैं वो ऐसा तो मेरी मम्मी के पास भी था, मैंने देखा है. ओल्ड इज गोल्ड. एक है कि होम में बिजनेस है. चंडीगढ़ में, मोहाली में बहुत सारी बुटीक्स घर पर है. दे आर रियूनिंग योर बिजनेस और समथिंग की मार्केटिंग ही खराब कर रही. And she had already bought a lehenga in Delhi from some designer for her wedding, and she came and she told me कि after buying all these clothes now I'm very stressed. Then her mum called me up at 12 o'clock at night and said यार वो तो बड़ी टेंशन च हैगी है, हुन लहंगा भी करना पड़ेगा. फैमिली को कंसल्ट करके एक फैमिली का बजट होना चाहिए कि चलो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ठीक है, बट दिस इज द बजट वी वांट. एवरीथिंग स्टेज इन फैशन फॉर एवर. अदर थिंग्स चेंज, दिस स्टेज. Welcome back to Multiverse Podcast, where every story, thought, trend find a voice. आज हम एक ऐसे स्टोर में हैं जहाँ पर पहला कदम रखते ही आपको एक फील होगी, एक वाइब फील होगी. वाइब होगी पंजाब की आन बान शान. एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 35 साल से पंजाब की विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि आज की एक फास्ट चेंजिंग लाइफ में, फास्ट फैशन चेंज में प्रूव किया है कि हैंड क्राफ्टमैनशिप, ट्रेडिशनल चीज़ कभी ओल्ड नहीं होती. जिन्होंने पंजाब की विरासत को सिर्फ कपड़ों तक नहीं, होम डेकोर तक एक्सपेंड कर दिया है. चलिए मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत से और उनके साथ जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में. हाय मैम, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू. ओके, ये जर्नी आपने 35 इयर्स पहले शुरू करी इन ब्राइडल इंडस्ट्री, एंड जैसे हमने भी वॉक थ्रू करा इसे, इट्स नॉट रॉन्ग इफ़ वी कॉल यू शान पंजाब, बिकॉज जो हेरिटेज आप इतने टाइम से मॉडर्न एरा को टच देते हुए कंटिन्यू कर रही हैं. सो टेल मी समथिंग अबाउट कैसे स्टार्ट हुआ ये, क्या मतलब क्या कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे यही बिजनेस करना है? मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था कपड़ों में. My father opened a store called Perfection House here in Sector 17 in 1985. Okay, it's a clothing business. Okay. He opened it for his sister's husband. Okay, उनका कोई family dispute ये whatever. My father was also into construction. उनका भी कभी कोई interest नहीं था. But when he opened it, you know how partnerships don't work sometimes. So my father used to say that somebody needs to go to the store. कोई तो जाए तुम में से. And I was the eldest child. So I used to say चलो college के बाद I will go and sit there for a bit. Okay. So that's how it started. I started looking at, मुझे कपड़े का कुछ समझ ही नहीं थी कि क्या सिल्क है, क्या कॉटन है, whatever. And I started sitting there. And when I started sitting there, you start saying कि ये क्या कर दिया, ये खराब कर दिया, ये क्या कलर लगा दिया आपने, ये पैच क्यों लगा दिया. So I realized I probably had a little bit of an aesthetic sense, where I could put things together and they came out looking nice. That's how it all started. My interest in putting things together. Okay, so you were at that time a college, I guess, say that 17-18-year-old girl going to the shop, his 18, father and managing and देख रही है कि कैसे कहाँ पर रहा. So आपने बताया आप कॉलेज जाते थे. So you have a degree in the same fashion background? No. Because अब तो my degree is in business administration. Oh. I'm a marketing student. I wanted to get a job and do marketing. But my father was very old school and he said लड़कियां काम नहीं करती हैं. Oh. So even for this business, I had to really have lots of people convince my father कि करने दो उसको, करने दो उसको, करने दो. Then he agreed and he said कि मेरे स्टोर के अंदर ही एक छोटा सा स्टोर करके अपना कर लो, where I can keep a watch on my daughter. You're not going to do it separately. Okay. Then in 85, I started my small brand called Barbies. It was like a shop in shop. Okay. So inside the store, he gave me a little bit of an area and said कि इस area में आप अपना कर लो. अपना start That's करो. how I started. Okay. So अगर हम देखे जाए तो अभी family के type
तरफ से थोड़ा कम सपोर्ट था आपको, एंड था तो एक कंजर्वेटिव कि आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है. देन अब यू हैव स्टार्टेड. देन आफ्टर मैरिज मतलब कैसा रहा सपोर्ट फैमिली का? I was already working for 10 years before I got married. Okay. I had established a brand by the time I got married. But my husband let me do it. कि करो. And then it just grew as a business. So I think I was one of the first people who had ready to wear outfits. It wasn't like a usual boutique that people do कि आप आओ कपड़ा लेके और हम सिल देंगे. So I had ready stuff which was kind of unusual in that time because nobody kept ready-mades. So that's how I started. Chandigarh, I think I was the first one to keep ready stock. And people started finding it very easy to come in and look at the product and buy it rather than wait for it to be made and then, you know. So that caught on very fast. Okay. So I got a lot of appreciation for the work I did. And so I grew and I learned along the way. Customers आपको सिखाते हैं जो आपको डिग्रीज नहीं सिखाती हैं, वो आपको एक्सपीरियंसेस और क्लाइंट सिखाते हैं. तो लाइव एक्सपीरियंसेस के साथ कहें हम जरपोश बाय बॉबी ग्रेवाल बना है. बिल्कुल. दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंसेस एंड माय लर्निंग्स अलोंग द वे. इट्स नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद एनी टेक्स्ट और एनी बुक. इट इज अ बुक इन इटसेल्फ. ओके. बिफोर गोइंग एनी अदर क्वेश्चन, आपने अपने शादी से पहले 10 इयर्स तक करा, मतलब लाइक तब आपका एक ब्रांड बन गया था, एक एस्टेब्लिश ब्रांड चंडीगढ़ में कि एवरीबडी नोज दैट हाँ इफ यू वांट टू गो. ठीक है. तो तब से हम अभी 17 में सेम ही प्लेस में हैं आप यहाँ पे कैसे? नहीं, आई वाज in 17 next to Ghazal पहले, where my father's store was. And then after that COVID hit, and then I wound up from the market and took my studio home. मैंने घर के साथ ही अपना स्टूडियो बना लिया था, so that was easy to be at home. And then I was looking for a place which was big enough for me to expand into interiors and home and you know my clothes as well. फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं, so they were a big support and they wanted me to you know take it to the next level. कि mama, everybody needs to know you've been working so hard so long. Exactly. So take it to the next level. So then this store came up and my older son's friend owns the place or whatever. So he just said कि mama look, I was like इतना बड़ा क्या करना है and all that. He's like नहीं करना है तो बड़ा करना है. Okay. That's how Zarposh came along. Okay. So before going to the question of vintage style of जो मैं भी देख रही हूँ कि काफ़ी royalty and decor के item आपने बड़ी vintage style में रखी हुई है. Before going to that question, कितना difficult था because आज की जो Gen Z trends हैं they are like not able to manage work and अपनी life. पर्सनली मैं भी नहीं मैनेज कर पाती हूँ कि हाँ अभी मैं वर्क भी मैनेज करूँ, घर भी मैनेज करूँ. सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू दैट टाइम? इट वाज डिफिकल्ट और इट वाज वेरी स्मूथ? बिग हाँ सपोर्ट. आई डोंट नो वेदर इट वाज डिफिकल्ट. आई जस्ट फील जो करना है वो करना है. ओके. सो अगर घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी मैनेज करने हैं, काम भी मैनेज करना है, और व्हेन यू डिसाइड करना है तो वो हो जाता है मुझे लगता है. ओके. हाँ ठीक है. हम मे बी वी वर यंगर. आज मुझे कोई बोले तो मैं कहूँगी नहीं भैया मेरे से नहीं होगा. बट रनिंग अराउंड बहुत थी. हाँ, यू नो बिकॉज यू नो व्हेन यू आर अ वर्किंग मदर यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट ideas. You feel guilty about leaving your children behind घर पे. So you try to do that extra bit. So I feel कि all working women have a little bit of guilt somewhere leaving their children behind because we are made like that. तो उसमें आप अपने तरफ से और एक्स्ट्रा करते हो और अपने आप को खुद ही थकाते हो. दुनिया को नहीं पता कि आप एक्स्ट्रा कर रहे हो. दुनिया thinks it's okay, you're working also. They understand. But you don't. So you want to do more. You want to be the one dropping the children. You want to be the one picking up the kids because your guilt tells you कि भाई बाकी mothers कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे. So वो एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा. अपनी ही वो inhibitions होती हैं जो बाहर आती हैं. But I don't think it's that difficult. And girls these days are multitasking. तो बहुत कुछ करती हैं. So and आजकल support भी ज़्यादा है. सब कुछ is different. पहले हमारे को इतना support नहीं था कि लड़कियां नहीं काम करेंगी, ये नहीं वो नहीं. But अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Now so the girls have so many avenues, so many different things to do. So I'm sure they can manage. Everybody can manage. ओके मैम, आपने स्टार्ट किया ये क्लोथिंग बिजनेस से, बुटीक स्टाइल एंड एक क्राफ्टमैनशिप को लेके आए आप, एंड 35 ईयर से है. फिर एकदम से क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं आई हैव टू गो इन डेकोर और दिस ज्वेलरी इन
ज्वेलरी थोड़ी बहुत मैं शुरू से रखती हूँ, जब से ये थोड़ा सा ट्रेंड आया था, आई वाज इन सेक्टर 8 ओनली, तभी से मैंने थोड़ा बहुत ज्वेलरी रखना शुरू कर दिया था. बट decor I always wanted to keep. I'd always wanted to have eclectic pieces that I've collected over the world. It's not like I'm sourcing from कि भाई एक पीछे से कोई मेरा वेंडर है वो भेज रहा है और आ रहा है, ये भी बात है, बहुत है. हाँ, so ऐसा कुछ नहीं है. All the pieces that I've collected are from all over the world. It's my choice. ये मेरा टेस्ट है. So जिसको मेरे टेस्ट के साथ का जिसका टेस्ट है वो अप्रिशिएट करता है इस चीज को कि ये चीजें यहाँ नहीं मिलती है रेगुलरली. So it's really nice. I don't have to go to Paris to pick up a piece if I can get it here. So that is what was in my mind कि मुझे करना है. एंड घर रखने का मुझे शुरू से बहुत शौक है. अच्छा. I don't spend much money on jewelry or clothes or bags or shoes. मेरे को शौक नहीं है. मुझे अच्छी घर की चीजें कलेक्ट करने का शौक है. So in fact whoever would come home would say कि यार तेरा घर है कि म्यूजियम है, कहाँ से उठा के लाई हुई है सामान, like that. Decor items इतनी अच्छी थी. So आप सब मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे. आज तो से अब घर में जगह नहीं है तो मैं इसका कहाँ रखूंगी अब इसको. बट आई स्टिल वांट टू गेट मोर स्टफ. सो देन आई डिसाइडेड व्हाई नॉट कीप इट फॉर पीपल हु कीप आस्किंग मी कि कहाँ से लाए अपना, कहाँ से आपने ये पीस लिया, ये मिरर कहाँ से आया, ऐसी चीजें. सो आई थॉट मैं यहाँ रखूंगी. एटलीस्ट पीपल हु अप्रिशिएट व्हाट आई हैव एट होम कैन ऑलवेज कम एंड पिक अप व्हाट दे वांट फ्रॉम हियर. सो आई वांटेड दैट all in one place wala store where you walk in and you can pick up something for your house or something for yourself or some jewelry or and maybe just a bag, you know, anything. हाँ. So मतलब like हम कहें कि आपका एक तो इससे जो आपकी हॉबी या फॉन्ट कहे फॉर डेकोर आइटम वो भी कंप्लीट हो गया एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम ऑब्वियसली क्लाइंट्स, राइट. बट समटाइम क्या होता है मैम, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं फ्रेंड हूँ, मैंने उसे अप्रिशिएट तो कर दिया कि यार योर हाउस इज सो गुड एंड बड़ा मस्त लग रहा है यार, कहाँ से लिए ये आइटम. बट वो बिजनेस में जब ये बात आती है, सो व्हाट यू फील कि वो बिजनेस में आपको सपोर्ट मिला, मतलब लोगों का? बिजनेस को बिजनेस की तरह शायद नहीं किया, वो मेरा एक ड्रॉबैक है शायद लोग कहते हैं. अच्छा. बिकॉज आई फील दैट जो करना है पैशन से करो. बिजनेस अपने आप हो जाता है. अगर मुझे कोई चीज बहुत ही सुंदर लग रही है, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक लाइक मी और हैव द टेस्ट सेम एज मी. आई एम नॉट लाइक वन पर्सन जो बड़े ही कोई अलग है. सो आई एम श्योर ऐसे टेस्ट के बहुत लोग हैं. एंड आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर माई फर्नीचर ऑल्सो, फॉर माई डेकोर पीसेज ऑल्सो. बहुत अच्छी रिस्पॉन्स. इनफैक्ट लोग आके बोलते भी हैं कि वाओ रियली नाइस टू नो दैट वी कुड गेट समथिंग लाइक दिस इन चंडीगढ़. बहुत लोगों ने मुझे ये बात बोली कि ऐसा स्टोर हमने चंडीगढ़ में देखा नहीं है, और कुछ नहीं तो कोई बाहर से आएगा तो दिखाने लायक तो कोई जगह है ना हमारे पास चंडीगढ़ में, लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स यू गेट इनकरेज्ड एंड यू वांट टू डू मोर व्हेन यू गेट इनकरेज्ड. सो रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा. ठीक है. अभी आपने कहा कि आपने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लिया कभी, तो मैम एक कहा जाता है कि अब अगर एक लेडी बिजनेस कर रही है तो वो बिजनेस सिर्फ अपने लिंक्स के थ्रू कर सकती है. लाइक यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स, योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दोस्त, तभी आप इस टाइप के बिजनेस में, स्पेशली इन क्लोथिंग, एंड जबकि इतने सारे मैं कहूँ स्टोर्स भी हैं, प्लेसेस भी हैं. सो ऐसा कुछ है कि इस बिजनेस करने के लिए लिंक्स की ज़रूरत है हमें? मेरे तो ऐसा कुछ, मैं आई एम अ वेरी नॉन सोशल एंटी सोशल एलिमेंट. ओके. मैं कोई, मेरी ना कोई कभी जिंदगी में मैंने कोई किटी ज्वाइन करी या कुछ, मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं. बट आई फील pleasantness, making associations and taking them further into making them relationships are more important than just sitting around in kitties or lunches or dinners and just talking for the heck of it and coming back. That is not a connection you make. Okay. That is time pass. Connection is through, आज आपने मुझसे बात की, कल का आपको मेरे को फोन आएगा किसी बात के लिए और मैं फोन ही ना उठाऊं तो ये कोई कनेक्शन ना बना, ये तो वेस्ट हो गया टाइम. हाँ, टाइम वेस्ट हुआ. जिसके साथ आप थोड़ा भी टाइम स्पेंड करते हो वो एक कनेक्शन बनना चाहिए, वर्थ स्पेंडिंग दैट टाइम होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील. दैट्स व्हाई आई डोंट गो एवरीवेयर इन एनी प्लेस. जो रिश्ते मायने रखते हैं हम वहाँ जरूर जाते हैं. इट्स द सेम थिंग इन बिजनेस ऑल्सो. आपका क्लाइंट वो क्लाइंट है जो बार बार आपके पास वापस आता है, वो बिजनेस है. एक बार आके दोबारा कोई ना आए वो बिजनेस नहीं है. वो तो बाय चांस टाइम पास था, कोई बाय चांस केम अक्रॉस योर स्टोर तो चलो हम चंडीगढ़ आए हुए हैं, एक पीस उठा लिया, दोबारा कभी नहीं. आपका बिजनेस तब है जब हर क्लाइंट जो आपके पास 15 साल पहले भी आया, आज मेरे घर में शादी है, मैंने आपके बारे में सोचा आपसे ही लेना है क्योंकि मैंने तब लिया था
एंड वो लिंक है हमारे मामों टच वुड, गॉड इज वेरी काइंड। जिनकी शादियां करी थी हमने क्लोथ्स डिजाइन, आज हम उनके बच्चों के भी कर रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग, यस, यू नो। हाँ। सो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जो स्टार्ट किया था बिजनेस वो बॉबी ग्रेवाल नाम से था, सो आपने नहीं क्यों चेंज किया एकदम? बिकॉज आई एडेड समथिंग न्यू। ओके। अब आप मुझे, किसी को कपड़े चाहिए, कोई बोलता है यार कपड़े कौन कर रहा है, बाबी कर रही है। कोई कहता है इंटीरियर कौन कर रहा है, बाबी का नाम नहीं आता, बिकॉज एवरीबडी इज यूज्ड टू फॉर द लास्ट 35 years टू हियर माय नेम लिंक्ड विद क्लोथिंग ओनली, यस। सो इफ आई वांट यू टू थिंक about me in a new way, I need to give you something new. So that is why Zarposh came up, and I'm amazed that Zarposh has given me so many more clients than I expected. मतलब एक नाम के आने से दुनिया में लोग आपको डिफरेंटली देखने लग पड़ते हैं, ये मुझे पता नहीं था। लाइक आजकल के बच्चे समझाते हैं ये बातें। ओके, सो आई वुड से नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज मी, एवरीबडी नोज मी फॉर क्लोथ्स। सो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू, यू नीड टू गिव समथिंग न्यू। सो ज़रपोश का एक फॉर्मेट नया है, एक प्रोडक्ट नया है, एंड आई हैव टेकन इट टू इवन इन माई क्लोथ्स आई हैव टेकन इट टू अ लिटिल bigger level where I've got more variety and more things for people to just come and pick off the rack. Yes. ब्राइडल इंडस्ट्री में कुछ मिसकंसेप्शंस रहती हैं, राइट? मैं पूरा ब्राइडल आउटफिट में जाने से पहले एक चीज़ मेरे को जो लगा है कि जो ब्राइड मेड्स हैं एंड ब्राइड्स की मदर्स होती हैं उनको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया जाता है ब्राइडल स्टोर्स में, स्पेशली जहाँ पे मतलब लाइक पूरा क्राफ्टमैनशिप चल रही है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, तो वो बहुत कम दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ की पब्लिसिटी भी कर रही हूँ तो आई विल पब्लिश दैट, हाँ, कि ब्राइडल अपने साथ ये सूट कैरी कर सकती हैं, ब्राइडल अपने साथ ये लेके साथ दाज में ये रख लें, वरी ये हो जाएगा, बट वहाँ पे मदर्स एंड थोड़ा ब्राइडमेड्स को थोड़ा सा साइड कर दिया जाता है। आजकल तो मदर्स आर एज इम्पोर्टेंट, सिस्टर्स आर एज इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स आर सो इम्पोर्टेंट। फॉर अ वाइल नाउ आजकल कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स बनने लग पड़ी हैं कि अगर हमने everybody is going to wear that color except for maybe the bride, yes, but it's complementing the bride. So जो आप पीछे बैकग्राउंड में मदर है, सिस्टर है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, they are giving you the canvas पीछे for the bride to look good. So आजकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनने लग गया, and I think everybody plays a very important role. Just the bride being dressed as a bride and rest everybody in random clothes will never make the bride look special. So you need to have, everybody needs to be given importance, and everybody's clothes need to be good for the bride's clothes to be standing out as well. So मैम, जैसे आपने बताया, अभी हमने बात करी आपसे, आपका फैशन इंडस्ट्री से लिंक नहीं है, so कभी आपको मतलब डिफ़िकल्टी आई क्राफ्टमैनशिप्स? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक क्लास को डील कर रहे हैं, आपके पास आते हैं, मतलब लाइक कोई ऑफेंस नहीं किसी के लिए, बट हाँ कि एक क्लास आती है, एक एजुकेटेड क्लास, एक रॉयल्टी आती है कि हाँ भाई हमने जाना है, लेना है, ये हमारे माइंडसेट है। सेम टाइम में आप डील कर रहे हैं उनको, माइट बी दे आर अनएजुकेटेड एंड माइट बी देयर लाइक बात करने का स्टाइल शायद वो ना हो, राइट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो मतलब कभी डिफ़िकल्टी आई क्राफ्टमैनशिप को समझाने में, करने में, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मतलब लाइक दिस एजुकेशन बैकग्राउंड ही नहीं है ये वाला। फिर भी हाँ, मतलब नहीं है, हाँ, जिनका होता है उनको भी डिफ़िकल्टी आती है। अच्छा, बिकॉज यू हैव टू स्पीक 2 languages. हाँ, one language is for your workers and one language is for your clients, so you have to learn 2 languages. And this is like I said before, the journey teaches you how to deal. Initially हम रोए भी, frustration में रोना धोना भी हुआ. Okay. In fact once my father said बंद करो इसको, ये सारा टाइम रोती रहती है, फायदा क्या ऐसे काम का. So then I got scared कि बंद ही ना कर दे मेरा store. So but actually बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Definitely they understand in a different language. But now I guess they understand us and we understand them. Also with time, if your karigars remain the same, I feel the journey gets easier. Touch wood, both my main masters have been with me from day one. 35 years उनको भी मेरे साथ हो गए. Oh. मेरे जो कारीगर है वो भी कोई 15 साल से है, कोई 18 से है, कोई 20 से है, कोई 25 से है साथ. तो
उसमें बहुत आसान हो जाता है। हाँ। अब मुझे बोलने से पहले उनको समझ आ जाता है व्हाट शी वांट्स, बिकॉज वो एक सेटिंग ट्यूनिंग बन गया आप लोगों तो के अब साथ उनको में। पता लग गया है ना। हाँ। एंड नए नए कारीगर चेंज करना बहुत मुश्किल है। ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई मुझे रेड के साथ येलो नहीं पसंद, टेक्स अ लिटिल वाइल, बिकॉज वो सोचेगा भाई अब ऐसा अच्छा लगेगा मैम ये बना। दूसरा मुझे बोलेगा ही नहीं जो पुराना जो मेरा कारीगर है, उसको पता है मैम ने ये उसी टाइम ना कर देनी है कि ये कॉम्बिनेशन तो इनके साथ चलेगा ही नहीं। सो एक सेटिंग सी हो जाती है। वन आई गेस इट्स अ रैपो यू फॉर्म विद योर वर्कर्स, दे आर आल्सो लाइक योर फैमिली। यस। So they also know कि what I like, what I don't like. I also know their moodiness कि आज he is going to snap. So if he is snapping, let's ignore him कि कल ठीक हो जाएगा। कोई ना कल बात करते हैं Exactly. So वो एक system होता है, you have to kind of maintain it, and I feel I've been very blessed, and I'm very lucky that everybody who's been with me in this journey has been with me throughout. So it just got very easy. Right. मैम अभी जैसे वी आर जस्ट अबाउट टू गो इन 2026, राइट? इट्स 2025 दिसंबर। मैं देख रही हूँ कि यू आर विद इंडियन कल्चर, टच विद इंडियन कल्चर, इंडियन रूट, हेरिटेज, विंटेज। एंड आज के का जो जेनजी क्राउड है, जेनजी जनरेशन है, दे वांट अ मॉडर्न स्टाइल इफ़ दे वांट टू गो फॉर एनी किसी भी कपड़े के लेके, लाइक क्राफ्टमैनशिप चलेगी, उन्हें हैंड एम्ब्रॉयडरी चलेगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा उनके स्टाइल में ये ट्विस्ट के साथ। बट लाइक अभी ज़रपोश वो नहीं प्रोवाइड कर रहा। रीजन बिहाइंड दिस? ज़रपोश डजंट स्टैंड फॉर दैट। आई एम नॉट हियर टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द फैशन इज। ओके। आई एम हियर टू मेंटेन व्हाट आई डू। ओके, राइट? एडजस्टमेंट के लिए डिजाइनर्स नहीं है। अगर आप कहो कि मुझे मेहंदी का आउटफिट चाहिए, किसका दिमाग में आता है? अच्छा चलो वो फलाना डिजाइनर है ना, वो वैसा करता है। अब वो डिजाइनर ज़रपोश वाला काम नहीं करेगा बिकॉज वो उसका फोटे नहीं है। आई वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई कैन डू, एंड आई फील वेरी प्राउड इन सेइंग दैट कि जो हम कारीगरी या कपड़ा यूज करते हैं, कारीगर यूज करते हैं, जो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आज तक जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो हमेशा कहते हैं 15 साल पुराना तेरा सूट पड़ा है, मैं आज भी पहनती हूँ। कितने मॉडर्न कपड़े हैं जो आप एक बार के बाद दोबारा डालते हो? बट इसमें यहाँ पे कंप्लेंट भी रहती है, जैसे आपने कहा 15 साल पुराने वाला सूट डाल दिया, बट सम टाइम कंप्लेंट्स ये रहती है कि आप ऑब्वियसली मैंने एक सूट बनाया, मैं एक एम्ब्रॉयडरी करवाई, एंड आफ्टर सम टाइम दैट एम्ब्रॉयडरी इज नॉट वर्किंग, मतलब लाइक वो शाइन वो चली गई नहीं, थोड़े टाइम बाद। मतलब यही भी बड़ा होना, इसीलिए भी थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट अब मशीन की तरफ जाने लग गया। मशीन एम्ब्रॉयडरी इज नॉट बैड। मशीन एम्ब्रॉयडरी कोई सस्ती भी नहीं। अगर आप अच्छी मशीन एम्ब्रॉयडरी करते हो, कई बार हाथ से महंगी पड़ती है। जो मशीन का डोरी का काम है वो ज्यादा महंगा पड़ता है। ओके। लेकिन बात ये नहीं है, बात है आप मटेरियल वो यूज करो जो अगले को लास्ट करे। मैं कहती हूँ आजकल के जमाने में आप एक आउटफिट को 5 बार भी पहन लेते हो ना, कहीं 5 डिफरेंट जगह में, आपको लगता है मेरे पैसे की वर्थ निकल गई है। यू डोंट फील के ओ यार ये लाख रुपया खर्च के तो मैं फंस गई, एक बार डाला है अब कहाँ डालूं। वो लाख रुपया जो आपने खर्चा है वो आपको 20,000 वाली वैल्यू देगा, क्योंकि आपने 5 बार पहना, आपको लगेगा डिवाइडेड बाय 5। You get the worth out of that outfit. Yet it is still lasting. अच्छे दुपट्टे, heavy garments, you can play around with them. They become traditional things to pass on to your kids. Okay. अब हमें क्या पता अभी कितनी चीजें हैं जो आज मिलती नहीं है। लोग बात करते हैं वो कपड़ा नहीं रहा, वो क्वालिटी नहीं रही, 20 साल बाद वो कहेंगे ये क्वालिटी भी नहीं रही, right? Because things are moving so fast now. So, ये चीज़ें एयरलूम पीसेस बन जाते हैं, आप आगे पास ऑन करते हो, आपको बच्चों को लगता है ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर है। बिकॉज थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स चेंज, एंड चेंज इज अ लिटिल फास्टर देन इट यूज्ड टू बी। सो आई फील टू कीप दीज थिंग्स गोइंग, यू हैव टू कीप एट इट ऑल द टाइम। बनाते रहो वही पुरानी लुक। आज भी कई लोग आके कहते हैं वो ऐसा तो मेरी मम्मी के पास भी था, मैंने देखा है, लेकिन आज भी आपको अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड ऑलवेज स्टेज, हेरिटेज, क्लास, एवरीथिंग स्टेज इन फैशन फॉर एवर। अदर थिंग्स चेंज, दिस स्टेज। आज भी आप रॉयल्टी की पिक्चर देखते हो, किसी की रानी महारानी, कहते हो क्या कपड़े पहने, क्या ज्वेलरी पहनी है, कोई ये तो नहीं बोलता क्या बकवास पहना हुआ है, स्टिल अप्रिशिएशन होती है ना। सो आई फील कि हेरिटेज एंड क्लास एंड गुड थिंग्स ऑलवेज स्टे। सो वन शुड invest wisely,
आई डोंट से कि 50 गारमेंट्स खरीद लो, खरीदो 10 खरीदो, लेकिन ऐसे खरीदो जो 10 बार डालो। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि आई एम गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट विद ज़रपोश बाय बायबी अग्रवाल, शी सेड ओ वाओ, शी सेड दैट आस्क माय वन क्वेश्चन टू मैम दैट अगर मैं प्योर का कपड़ा लेने जाती हूँ, बिकॉज शी इज़ माई एज, राइट, शी डजंट हैव अ मच नॉलेज, आई ऑल्सो डोंट हैव अ मच नॉलेज अबाउट क्लोथ, राइट, फैब्रिक के बारे में। तो क्या रहता है प्योर का करके मैम कि हाँ दिस इज़ अ प्योर, राइट, आप प्योर शिफॉन कह लो या प्योर कपड़ा कह लो, प्योर सिल्क कह लो, बोलते तो हैं प्योर सिल्क एंड प्योर शिफॉन है, बट दैट इज़ नॉट 100% प्योर शिफॉन एंड प्योर सिल्क, तो वो डिफरेंस ही नहीं पता चलता। तो हम जैसे लोग हैं वो थोड़ा सा फिर डरते हैं कि यार इतना क्यों एक्सपेंस करें, हमें तो पता ही नहीं है। So now I would correct you there because there are now, that is why you will say कि मैंने ज़रपोश से लिया है और मैंने फलाने स्टोर से नहीं लिया, because हम एटलीस्ट ये गारंटी तो देते हैं कि जो बोलते हैं वो होता है। ओके, ठीक है, राइट। हाँ, अब आप, there are a lot of places who call it, like if even in, I don't want to take the name, but our neighboring country also has lot of people saying pure जब fabric आता है, but it isn't, but for them that is, so they are also correct because that's all they know, for them that's pure, they are not wrong, but they are wrong where we are concerned because we know it's not, right? So I feel trustworthy जगह से लो, जैसे आप जूलर होता है कोई, yes, आपका फैमिली जूलर होता है, yes, yes, आप yes, ज्वेलरी के लिए जाते हैं, हाँ, अब आप वो ज्वेलरी वहीं से लोगे, चाहे मैं कहती हूँ 10 नई दुकानें खुल जाएं, लेकिन जहाँ मेरी मम्मी जाती थी मैं वहां से जाके लूंगी, बिकॉज एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, ट्रस्ट बिल्ड है, यस। सो व्हेन यू बिल्ड दैट ट्रस्ट विद इवन अ डिजाइनर, द डिजाइनर herself will feel guilty giving you something wrong. There are lots of people, in fact there's a client in Canada I've never seen, I've never met her, okay, she's buying from me for 20 years now. हम कभी नहीं मिले, वो इंडिया नहीं आई, मैं कनाडा नहीं गई, हम कभी नहीं मिले, okay, लेकिन उसके घर में कोई शादी हो, कोई उसको नया चाहिए हो, उनका फोन आ जाता है, वो मेरे को ट्रस्ट करते हैं कि मेरा ये फंक्शन है, कौन सा कलर बनाओगे ये बता दो, अच्छा आई ट्रस्ट वट एवर यू वांट टू मेक, यू मेक फॉर मी। व्हेन अ पर्सन लीव्स दैट ऑन टू यू, यू गेट मोर कॉन्शियस कि कोई गलती ना हो, क्योंकि अगले ने तुम्हें ट्रस्ट किया है, अगले ने बोला है कि भाई मैं तेरे को ट्रस्ट करती हूँ, तू देख तूने क्या बनाना है। आई वुड नेवर गिव हर एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज दैट पर्सन इज ट्रस्टिंग मी, यू कांट ब्रेक दैट ट्रस्ट ऑफ अ क्लाइंट, so you make sure even if you earn less in that piece looks spectacular, so that she is not disappointed. So I feel trust is very important. If you trust me, you give me that responsibility, obviously I'll be more responsible towards you. If a client comes and says ये क्या है, वो क्या है, ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है, ये तो नहीं मुझे लगता, तो मैं कहती हूँ आपको ही सब कुछ पता है, आप देख लो जो आपको पसंद आता है। I lose interest, right? हाँ, because if you're here to criticize me, then go ahead and do what you want to. But if somebody comes and says you guide me, it gives me a responsibility, so I feel let me guide her, right? She's asked for my guidance, so it works both ways. ओके, बिफोर गोइंग टू अ ब्राइड क्वेश्चन, जहाँ आपने भी बात करी कि नेबरिंग कंट्रीज़ में ऐसा होता है, हमारी नेबर्स सिटीज़ में आजकल ऐसा होने लग गया है। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट रील, मैंने इंस्टाग्राम में देखी थी। दिल्ली में ज़्यादातर आजकल तो मतलब लाइक डिमीनिंग बहुत चल रहा है, एक दूसरे को बहुत डिमीन कर रहे हैं दिल्ली में हर एक इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे आजकल क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल आई हैव बॉट अ लहंगा फ्रॉम ए प्लेस, सो आई एम गोइंग टू अ बी प्लेस, इट्स काइंड ऑफ यू कैन से मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल। तो मैं ए प्लेस से मैंने लहंगा खरीदा, मैं बी प्लेस में गई और मैंने कहा कि भी अच्छा मेरे को और कपड़े दिखाओ, उन्होंने देखा कि लहंगा, अच्छा ये आपने हैंड एम्ब्रॉयडरी का लहंगा लिया है, कहाँ से लिया था, ओ ये तो हैंड एम्ब्रॉयडरी का है ही नहीं, इट्स अ मशीन वर्क, आपने तो बहुत महंगा ले लिया, लेट मी शो यू समथिंग न्यू एंड गुड, ओ माई गॉड। फिर मतलब लाइक वहाँ से गेम शुरू होती है एक दूसरे को डिमीन करने की। मतलब इट्स लाइक दिल्ली में तो अब हर एक इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री ले लो, क्लोथिंग इंडस्ट्री ले लो, आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, ये आजकल रील बहुत वायरल है। वहाँ पे एक दूसरे को इसी तरह से कि हाँ भाई इन्होंने वहाँ से मेकअप कोर्स किया है, कुछ नहीं सिखाया, इन्होंने वहाँ से कपड़े लिए, शादी के कपड़े लिए, देखो हमने इससे ज़्यादा अच्छा लहंगा सस्ता दे दिया या ब्राइडल हैंड एम्ब्रॉयडरी दे दिया। तो ये भी एक ट्रस्ट मतलब लाइक लग जाता है कि भी हाँ भाई। अब चंडीगढ़ इंडस्ट्री में आप क्या कहेंगे इस बारे में कि चंडीगढ़ में क्या है? I don't think कोई किसी को डिमीन करता है। Okay. And I don't think one should also, because सबका अपना अपना फोटे है and कस्टमर की चॉइस है। You're providing A kind of work, the customer needs 2 outfits of the A, needs 2 of the B and 2 needs of the C. Yes, so this is 2 हमसे लेगा तो कहीं और से लेगा, तो वो तो obvious है।
अगर आप सोचो एक जमाना था जब हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं था, तब लोग आते थे, शादी है घर में, मेरे भी मैं, तेरे भी मैं बनाऊंगी, तेरी मम्मी के भी मैं बनाऊंगी, तेरी भाभी के भी मैं बनाऊंगी, चाची आ रही है वो भी मेरे से बनाएगी, मासी, हम सारी फैमिली के कपड़े हमसे जाते थे। ओके, ब्राइड का रिसेप्शन भी मेरा है, ब्राइड का वेडिंग आउटफिट भी मेरा है, कोई मेहंदी है, कुछ, दे विल कम टू यू एंड गिव एवरीथिंग टू यू एंड यू डू एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज there was not so much variety available. Today there's a lot of okay, so I want to be a Sabyasachi bride. है ना? Exactly, ये बड़ा है आजकल ब्राइड्स में। हाँ, तो आपका वेडिंग आउटफिट सब्यासाची होगा, तो आपको वो टैग मिल गया, फिर हम कुछ और करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे, उससे 2 ये ले लेंगे, उनकी वो लुक है 2 उनसे ले लेंगे, 2 हमने उससे ले लेंगे। आई फील वैरायटी अवेलेबल है तो कस्टमर क्यों ना ले। ठीक है, everybody fits into some kind of bracket for somebody, right? And now everybody is doing it. इसमें किसी को डिमीन करना, किसी के काम को बुरा कहना is very foolish, I think, and immature. Okay. Yeah, I think your work talks about you. Yes, yes. अगर आप गलत चीज बना के किसी को दे रहे हो तो गलत रिव्यूज मिलेंगे, लेकिन आप किसी को अच्छी चीज बना के दे रहे हो तो उसके भी तो रिव्यूज मिलेंगे। Yes. और गलतियां सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। आपकी कई बार कारीगर की गलती को ढकना पड़ता है। कस्टमर कहता है ये नहीं, हम कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक है, बुरा भी लगता है, लेकिन हम कारीगर की गलती कैसे निकाल दें अपने ही। So, कई बार टाइम शॉर्टेज होती है, कई बार कुछ होता है, गलतियां सबसे होती हैं, डजंट मीन कि कोई परफेक्ट है, लेकिन गलती इज गलती। इफ यू स्टार्ट रिपीटिंग दैट गलती, देन दैट इज यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस। ओके, सो गलती इज अ गलती। बार बार गलत चीज किसी को देना या कोई गलती करना, फिर वो एक आदत बन जाती है, विच इज नॉट राइट। और किसी को डिमीन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। दैट इज़ अ लिटिल काइंड ऑफ यू नो दुख होता है कि आप इतनी मेहनत करके अपने कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हो, अपने आइडियाज़ लाते हो, सब कुछ करते हो, और एक बंदा घर बैठा हो स्क्रीनशॉट करता है और वो बनवाता है। उसने मेहनत नहीं की, कुछ नहीं की, तो इसीलिए उसने पैसे भी आधे लगा दिए। ना उसने डिजाइन किया, ना उसने वो मटेरियल लगाया, ना कुछ किया, उसके पैसे आधे कर दिए, और सबको बोला वो 50 का बेचते, हम तो 25 का बेचते, देखो सेम है। That is a little you know silly, but then well they also have to work and do something. सबका चल रहा है ना काम। I just feel कि किसी को पर्सनली मत लो, and किसी को पर्सनली डिमीन विमीन मत करो, अपना अपना काम करो and enjoy your life. Everybody is doing well. There are so many people working in the same line today, even in a small town like Chandigarh, and yet everybody is doing well. Yes. अब जैसे हमने चंडीगढ़ की बात की, आपने चंडीगढ़ में क्या मैम, ऑब्वियसली एक है आप जैसे लोग जिन्होंने एक बड़ा स्टोर बना रखा है एंड गिविंग अ रॉयल्टी वाला फील, क्या रॉयल्टी विंटेज वाला फील। एक है कि होम में बिजनेस है, क्योंकि चंडीगढ़, अब बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, आपको पता है चंडीगढ़ में, मोहाली में बहुत सारी बुटीक्स घर पर हैं, बहुत सारी बुटीक्स घर पर हैं। सो व्हाट यू थिंक दैट दे आर ruining योर बिजनेस और समथिंग की मार्केटिंग ही खराब कर रहे हैं कि क्राफ्टमैनशिप की क्या मुझे है? नहीं लगता ऐसा कुछ है, कर रहे हैं सब अपना अपना कर रहे हैं, सबका अपना एक डिजाइन करने का तरीका है, सबका एक टेस्ट है, सबका एक वो है। एंड आई फील अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, चाहे वो घर में बैठा है चाहे वो मार्केट में बैठा है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको आपकी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। सो विच इज यू नो लाइक जस्टिफाइड, बट अनजस्टिफाइड है कि आप कॉपी करके और घर में आप डुप्लीकेट्स बना बना के बेच रहे हो लोगों के। अब कितनी बारी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है फोटो लेके कि सभ्या का लहंगा है, ऑब्वियसली इट्स अनअफोर्डेबल, आप बना दोगे? नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम किसी और का काम थोड़ी ना एप करने के लिए बैठे हैं। सो इफ यू वांट अ सभ्या, प्लीज गो टू सभ्या, ओके, बट इफ यू वांट अ रितु कुमार, गो टू रितु कुमार, ओके। व्हाई वुड यू कम टू बाबी टू आस्क फॉर सभ्या और रितु कुमार? सो आई फील सबको अपना ड्यू दो। आपको नहीं लेना, बाबी का डिजाइन नहीं पसंद, सभ्या का पसंद है तो आप सभ्या से लो, लेकिन अगर बाबी का डिजाइन पसंद है और उसको बोलोगे आप सभ्या बनाओ, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। एग्जैक्टली। फिर अगर मैं कहूँ ब्राइड आई आपके पास, बिकॉज ऑब्वियसली योर क्राफ्टमैनशिप इज टू गुड, राइट? इतनी गुड है कि मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार और शादी करनी चाहिए। सो अगर आपके पास आई ब्राइड यहाँ पर कि भाई आई वॉन्ट अ मनीष मल्होत्रा लहंगा, मैम सी प्लीज आप ये बना दीजिए, रिक्वेस्ट करें, सो व्हाट बाबी मैम्स रिस्पॉन्स टू हर? No, I always say no. I always say, bete, Sabya is Sabya, Manish is Manish, and we are us. I don't want to, if you don't like my design, maybe I can incorporate or change my design to your liking.
but I don't want to copy somebody's design and give it to you. I don't think that's fair. Okay. So I generally refuse because it's not fair. So it's a honesty work. You are doing it with honesty. Yeah, like I said, I don't do the business like a business. I do it because I enjoy yes, you it. told earlier that you are. So मैम जैसे कभी आपके साथ हुआ है कि कोई चंडीगढ़ से ही आया हो किसी होम बुटीक का लेके कि देखो आप ये डिज़ाइन इतने का दे रहे हो, वो ये डिज़ाइन ने इतने का बना दिया है मुझे, आप बहुत साल पहले I met a friend in golf club gym and she told me, she says कल मुझे कोई किसी की बुटीक पे ले गया घर पे, and that lady had a hanger with clothes and she said कि मेरे को शादी पे जाना है तो मेरे को outfits चाहिए, and that lady asked her कि आपको किसका चाहिए, बाबी का चाहिए तो ये वाले डिज़ाइंस बाबी के हैं, आपको फलाने डिज़ाइनर का चाहिए तो वो इनके हैं, उन मैडम के चाहिए तो उनके ये वाले डिज़ाइंस हैं, आपको किसका चाहिए. She said I was so taken aback that the copies were hanging there and with the name she was blatantly talking about it कि आपको इनका चाहिए कि इनका चाहिए, इनका चाहिए. So she told me, she says, you know, this is happening and somebody is copying your designs and they have it on hangers and whatever. And with your name as well. मतलब publishing भी बाबी इसके name से हो रही है. बाबी वाला डिज़ाइन चाहिए कि फलाने का चाहिए कि फलाने. I was really hurt at that time, and that time, you know, reactions were also like, you were younger and you were like, कौन है ये, हमको नंबर दो, हम इनसे बात करेंगे and all that stuff. Okay. Then I realized कि इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है. Another friend of mine who's in the same business, she told me, she says, I called up, that person had put her design, and I called her up and I said कि आपका ये डिज़ाइन कितने का है, तो she said इतने का है, and she said I was selling it, my piece was 3 times the price, and I was like इतना सस्ता कैसे बेच रही है. So obviously the fabric and the material is bad. That is why the cost has gone down so much. So she said, मैंने बोला, you know, I am speaking so and so designer and this is my design and look what you're doing. कहती है so what? वो लेडी ने आगे से बोला so what? आप लोगों ने, she took my name, her name and other designers name कि आप लोगों ने इतने साल रूल करा है, काम करा है, तो अब हमारी बारी है. तो she said अगर तुम्हारी बारी है तो अपने डिजाइन्स करो ना, हम तो किसी को नहीं रोक रहे काम करने से, but don't copy us. She said oh it's flattery ना if we are copying you. बड़े बड़े डिजाइनर्स कोई कॉपी करता है तो हम आपको भी डिजाइनर्स, आप बड़े हो हमारे लिए डिजाइनर्स, इसलिए हम आपको कॉपी कर. अब क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं कह सकते ना. Yes. बट हम ये यहाँ से ये मैसेज जरूर दे सकते हैं कि भी अगर आपका आप किसी का भी डिज़ाइन कॉपी कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रहेगा ही रहेगा. 19-20 नहीं, 100% फ़र्क है. 50% तो है ही है. अच्छा. सी क्या होता है डिज़ाइन में, आप एग्जैक्ट डिज़ाइन को देख नहीं सकते जो हम देख सकते हैं. लुक अलाइक आप बना सकते हैं, राइट. आप लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हैं, आप एक्चुअल पीस को क्रिएट नहीं कर सकते. Then they start cutting corners. They'll use fabric cheaper. They will use you know, embroidery का जो material आता है वो सस्ता वाला मिलता है, वो ले लो. Quality obviously will go down. जैसे आपने पहले बोला काली हो जाती है, embroidery खराब हो जाती है. This is what happens to your copies because you're paying less for it. So obviously the quality of the material used is going to be like that. Yes. So वो तो होगा ना फिर eventually. That is what the difference is in a actual designer's piece and the copies. This is the फर्क. तो वो तो one has to understand that कि क्यों इतना फर्क है. कोई घर बैठा 50,000 की चीज लाख रुपए में नहीं बेच सकता. You cannot do that. Even if I'm the designer, a lot more goes into it than a person can see. For every designer, the finishings, the back finishings, and you know the pipings and everything goes into it. और रेगुलर पीसेस में ये सब नहीं होता बिकॉज इट कॉस्ट सो मच मोर. वही कॉस्ट को ऊपर लेके जाता है आपकी फिनिश, आपकी लुक. सो हम कहें कि भी इस ट्रेडिशन में आपको एक बात ज़रूर मतलब अपने पास रखनी चाहिए कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. ये बात सही है कि एक बार रोए. बाकी अगर आपको कोई सस्ता दे भी रहा है तो बिफोर गोइंग टू सस्ता थिंग जस्ट लुक एट फैब्रिक, लुक एट वर्क, लुक एट मटेरियल दे आर यूजिंग. आई जस्ट फील एक रीजन तो हो दिमाग में कि सस्ता हो कैसे गया. एग्जैक्टली, यस. दिस इज अगर आप ऑनलाइन कोई चीज मैं कई बार देखती हूँ, कोई चीज होती है 2000 रुपीज में, मुझे लगता है 2000 में वो मुझे क्या दे देगा. I should not buy it. देखने में पिक्चर बड़ी सुंदर लग रही होती है,
पर हमने कि 2000 रुपए में सिलाई भी है, कपड़ा भी है, उस पर कुछ किया भी है, उसको कुछ बच भी रहा है ना, तभी वो कर रहा है. What can he give me in 2000 rupees? I refrain from buying it because it tells you, the price tells you the quality. अब आप ढाबे पे भी खाना खाते हो, उसने वही उसी में बनाया हुआ है, उसी पतीले में सब कुछ दाल बन रही है, वो उसी पतीले में पता नहीं धोई भी है कि नहीं बन रही है. बाकी बनाई जा रहा है और आइटम्स भी. तो इसीलिए if you are basically it's a give and take world. You pay for something, you get that in return. ठीक है, कोई सस्ता है, कोई महंगा है, किसी का थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा ज्यादा है, किसी का कम है, बट उसमें उसकी उतनी ही मेहनत ज्यादा है, उतनी उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा है. दैट इज व्हाट यू आर पेइंग फॉर. यू आर पेइंग फॉर द डिजाइन, द क्रिएटिवनेस, द लुक. यू आर गेटिंग एवरीथिंग पुट टुगेदर और ऑन अ हैंगर वेटिंग फॉर यू. इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से आज मैंने सूट बनाना है, पहले आप कपड़ा ढूंढोगे, फिर आप उसके ऊपर क्या लगाना है वो ढूंढोगे, फिर कोई कारीगर ढूंढोगे जो तो आपको कढ़ाई करके देगा, फिर आप वो ढूंढोगे, पहले डायर ढूंढोगे जो चुनिया डाई करके देगा, फिर आप कढ़ाई करवाओगे, फिर उसको सिलने दोगे किसी को, और अगर फिटिंग खराब होगी तो जितनी मेहनत आपने की है वो जीरो हो गई. राइट. फिर क्या करा आपने? मैंने आज 5000 रुपये बचा लिए, वो 25 का बेच रहे, मैंने तो 20 में बना लिया. उसके अंदर जो प्रोसेस गया आपके 5 घंटे, 8 घंटे, 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन, वो भी आप काउंट करिए. यस. राइट. वो सब हम कर चुके आपके लिए, और हमने अगर वो सब करने के बाद 5000 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी के कोई पैसे तो हैं. Obviously time is money. Time is money. अब तो सब चीजें And people are understanding that today. Everybody doesn't have every forte, right? I might have a forte in this, I might not have it in something else. And if somebody's opened a restaurant and is doing a fantastic job, I can't say इसने तो खाना ये पनीर की रोटी बना के दी, इसमें पैसे कितने लगे? कुछ भी नहीं लगे. बट उसने मेरे लिए प्रेजेंट करी, मुझे एक नई चीज खिलाई, कुछ करा, वो सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है ना. सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन टुडेज डे एंड एज. इट्स ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू. The concept is already decided, the color is already taken care of, everything is taken care. You walk in, you wear it, you pay for it and you walk out. It's the experience that counts. Okay, कभी मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. कभी ऐसा हुआ है कि ब्राइड आई है आपके पास, एंड ऑब्वियसली ब्राइड की आजकल मतलब मदर्स भी आते हैं, कई ब्राइड्स अकेले भी आते हैं, कि मदर कह रही है कि नहीं आप यहाँ से लो, ब्राइड कह रही है नहीं मैंने तो मनीष मल्होत्रा लेना है, एंड दे आर फाइटिंग. होता है, बहुत होता है. आर्ग्यूमेंट्स बच्चों और पेरेंट्स की तो होती हैं. ओके. कई बार ऑब्वियसली पेरेंट्स हैव टू लुक एट देयर पॉकेट आल्सो. हाँ. पर बच्चों के होते हैं इमेजिन किया हुआ मैंने तो वैसी लुक लेनी है, मैंने तो वही लेनी है. हाँ. सो वो तो होता है, आर्ग्यूमेंट्स तो होती हैं. बट समटाइम्स ये होता है घर से डिसाइड करके निकले होते हैं, लेकिन मार्केट में आके आइडिया बदल जाता है. तो ज्यादा हो जाती है आर्ग्यूमेंट, फिर वो ना इधर क्या होता है ना उधर का, वो चले जाते हैं. तो बाबी मैम क्या सजेस्ट करती हैं फिर, क्योंकि मदर्स का तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपकी तरफ ही रहता होगा इनक्लाइन कि हाँ भी बाबी समझाओ बच्चों को. नहीं, चलो जो समझने वाला बच्चा है वो अपनी माँ की भी समझ लेगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ती. बट यस, देयर आर सम टाइम्स वेयर द चिल्ड्रन आर एडमेंट कि मैंने तो यही लेना है. यस. मुश्किल हो जाती है. Even to the extent that there was a lady, she came to me and it was a lehenga for her daughter-in-law. तो she told me कि मेरा 1.5 लाख रुपए का बजट है, इसमें मैं उसको लेके आऊंगी, मुझे यही बजट दिखाना. ये ना हो कि उसका हाथ ऊपर हो जाए तो मुझे मुश्किल. मैं कहा इट्स बेटर यू लेट मी नो बिफोर. अब बच्चे को, अब वो नई लड़की के साथ जो शादी होके आ रही है उसको आप सीधा मुंह पे कह भी नहीं सकते नहीं बेटे हमारा 2.5 का बजट नहीं है, मत देखो. So she told me before. She got her, I showed her whatever I had in 150 ready. The girl didn't like anything. So the mother-in-law looked at me and she said कि चल दूसरे भी दिखा दे. I kept asking her कि why are you doing this? Because तुमने तो मुझे पहले मना किया था. She said चल दिखा दे, चल दिखा दे. अब उसने हाथ रखा 2.5 लाख के लहंगे पे, उसको पसंद आ गया. अब that lady said चलो I'll tell you tomorrow. Next day she called me up. She says ਹੁਣ मैं फंस गई, ਹੁਣ मैं की करा. दिस इज अ वाइल बिफोर एंड उस टाइम लाख रुपए की बड़ी वैल्यू थी. तो मैंने बोला हुन मैं तोनू क्या सी तुसी क्यों मंगाए फिर अंदरों दूजे लहंगे. ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਵਟਐਵਰ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂ. I agreed. What to say? वो भी फंस गई बेचारी. I agreed. ऐसे चल ठीक है. And I knew her. She was an old client. I said चलो कोई गल नहीं, तुसी इस तरह कर दो. But कई बार ऐसा भी हो जाता है इंसान फंस जाता है. Yes.
सो इसीलिए आई फील बजटिंग पहले करनी बहुत ज़रूरी है. पहले अपने दिमाग में चलो 20-50 हज़ार आजकल ऊपर नीचे हो जाता है. हाँ. बट दैट टाइम अ लाख मेंट लाइक समबडी जस्ट कम्स एंड सेज 2 की जगह 5 का दिखा दो. सो वो फ़र्क बहुत हो जाता है. सो आई फील थोड़ा सा एक फैमिली को कंसल्ट करके एक फैमिली का बजट होना चाहिए कि चलो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ठीक है बट दिस इज द बजट वी वांट. एंड आजकल आई थिंक एवरीबडी इज वेरी ऑनेस्ट. पहले ज़माने में होता था कैसे बताएं कैसे कहें. These days I guess kids and parents discuss everything beforehand, which is I think a very good thing. Okay. अभी तो मामा आपने बहुत सारी ब्राइड्स एंटरटेन करी होंगी, अभी हम देखते हैं कर भी रहे हैं आपने. अभी रिसेंटली आपने हिमाचल सीएम की वाइफ को भी आपने पूरा उनके लिए तैयार किया था उनका. सो कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या रहता है आपको, मतलब अगर ऐसे मतलब थोड़े से हाई फाई क्लाइंट्स आए तो क्या रहता है आपको कि यार इनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, या एक नॉर्मल क्लाइंट जो वॉक इन करके आया उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट कैसे रहता है? देखो अब मुझे पता नहीं था उसकी शादी किसके साथ हो रही है. अच्छा. मुझे उसने आके ये थोड़ी बोला कि आई एम गोइंग टू मैरी सो एंड सो. बिकॉज सब लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि अच्छा डिस्काउंट मिल जाए. वेरी दैट वे वेरी शाय अबाउट इट. ओके. And I didn't even and I've known them for a very long time. It's not like they're a new client or whatever. पुराने clients हैं. तो they said कि चलो इधर रिश्ता पक्का हो गया ना. Like very happy for her, whatever this that. No, and they said time बड़ा कट है साढ़े को. We just have 20-25 days for the whole thing. Okay. So उसकी सारी वरी बननी थी अभी. You know they had said कि since they are from a very like a royal family, so their taste is also like that and whatever. But luckily she liked everything that was ready was available and she chose everything quickly and everything was decided really quickly. So I just felt that उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं फलानी जगह मेरी शादी. I just gave her what I thought looked good on her. And she had already bought a lehenga in Delhi from some designer for her wedding, and she came and she told me कि after buying all these clothes now I'm very stressed because I don't think my lehenga is looking as good as these other clothes are, and that should be better than the other clothes. Then her mum called me up at 12 o'clock at night and said यार वो तो बड़ी टेंशन ची हैगी है, हुन लहंगा भी करना पड़ेगा. I said I have exactly what I think in my mind, just come. They came the next morning, she wore the lehenga and it was like, oh my god, this is it. Everything just fell into place really quickly. And that lehenga of hers, I think, I don't know how many people have contacted me after that picture of hers went viral. Yes, I have seen her lehenga. It's really good and color combination is very good. सबने मेरे को फोन करके बोला कि आपका है, ये आपका है, आपका है. वही होता है. कई बार ये होता है कि वो चीज़ ऐसी परफेक्टली अगले को सूट कर जाती है कि उसमें जो 4 महीने से एफर्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं वो कई बार ऑफ द रैक ज़्यादा बेटर चीज़ मिल जाती है. बिकॉज मुझे उन्हीं के एक आपने एक ड्रेस उनके लिए डिज़ाइन करी थी, आई गेस उन्होंने सोनिया गांधी एंड प्रियंका गांधी के साथ क्लिक करवाए थे. दैट टाइम इट क्लिक्ड इन माय माइंड कि बिकॉज दैट ड्रेस लुकिंग वेरी प्रोफेशनल, नॉट लाइक शादी वाला. क्योंकि जब भी हैंड एम्ब्रॉयडरीज की बात आती है ना, एक ही बात आती है दिमाग में, शादी वाली चीज़ें कि हमने उसके लिए काफ़ी कुछ लाइट भी किया है बिकॉज वो सूट ही पहनती है ज़्यादा. मतलब बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक फिगर हो जाते हो आप, तो एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम like a wife of a certain politician or whatever. You dress a certain way. So बहुत कुछ हमने उसके लिए ऐसा भी अंडरप्ले करके डिसाइड किया है. अभी थोड़े दिन परसों भी आए हुए थे वो. तो she needs things that you obviously cater to the need of the person, right? अगर आप मेरे पास आए और कहोगे मैंने कॉन्फ्रेंस पे जाना है, तो I'm not going to give you दबका सलमान, make you go on a conference. So it obviously if you have time then we can design according to your requirement and need. But अगर शादी पे जा रहे तो definitely I feel मतलब over the top is not enough. क्योंकि जब आप शादी पे जाते हो तो हमारे जो traditions हैं, टिक्के पासे, यही तो टाइम है डालने का. So I feel traditional is always the best look at weddings. ओके मैम, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि उन्होंने लहंगा दिल्ली से ले लिया था पहले, देन शी अगेन कम टू यू. एंड सो एक ये चीज़ बड़ी है चंडीगढ़ में, पीपल वांट्स टू गो टू दिल्ली फॉर ब्राइडल शॉपिंग. मतलब लाइक अब मुझे लगता है कि अगर मैं जैसे आज स्टोर में आई हूँ कि लाइक दिल्ली में इतना कुछ खास नहीं क्यों जो चंडीगढ़ में मिल सकता है. सो व्हाई पीपल स्टिल वांट्स टू गो दिल्ली? अभी भी दिल्ली का क्यों है लोगों को मतलब ट्रेंड क्रेज टाइप? पहले जैसे इतनी वैरायटी नहीं थी, राइट? तो उनको लगता था दिल्ली में वैरायटी है, बहुत लोग हैं या व्हाटएवर, इट इज़ वास्ट, लॉट मेनी पीपल डूइंग.
That's trend. In fact, I have got many Delhi brides this time. Okay. They want जो पंजाबी टच अब लोगों को वापस वो कल्चरल लुक चाहिए, वो दिल्ली में नहीं है अब. हाँ. They want that heritage and that look now again is back. So again we are getting people who want to come to us from Delhi, from Bombay. In fact, lots of people have asked me from Gujarat also. I've got calls कि मैम आपके स्टोर पे हम विजिट करना चाहते हैं and all that, because now with social media being present so strongly, Instagram, everybody gets to see what everybody is doing. Yes. इनफैक्ट अब जब कोई ब्राइड बाहर से आती है या कोई और सिटी की होती है, वो पहले ही अपनी लिस्ट बना के आती है कि मैंने इस बुटीक से ये लुक लेनी है और इस बुटीक से ये लुक लेनी है, वो पहले ही बता के आती हैं. आई समटाइम्स गेट पीपल हु ऑलरेडी गॉट अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय आउटफिट एंड दे सेड वी आर हियर फॉर दिस वन. Okay. Not realizing that we are not I don't do same pieces over and over again. Okay. जैसे अगर लोग डिज़ाइनर्स 10 पीस बनाते हैं, ये इस लाइन हमने इस बारी इस सीजन में ये लाइन निकाली है, उसी पे ऑर्डर्स लेते हैं. आई डोंट डू दैट. Okay. आई प्रेफर एवरी ब्राइड टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द ब्राइड बिफोर. इवन इफ आई डू रिपीट इट, आई डेफिनेटली चेंज समथिंग इन इट सो दैट इट्स एग्जैक्टली नॉट द सेम. अगर वही लुक होएगी वही, तो फिर वो पुरानी सी लुक हो जाती है, देखी हुई लुक हो जाती है. एंड आजकल बच्चे चाहते हैं कि व्हेन वी कम आउट और वी कम आउट एज अ ब्राइड, पीपल शुड बी अमेज्ड एट व्हाट वी आर वेयरिंग. Exactly. किसी ने अभी तक पाया ना हो. ये In वाला fact, line. I've done, I don't want to talk about it yet, it will come out. I've done a very unusual color combination for a bride in Delhi this time. Okay. And it's an Anand Karaj look, and she was very happy with it. She was very scared in the beginning when she came to order it, ki am I doing the right thing? But when she came and tried on her lehenga, she said, this is exactly what I wanted, and I've got exactly what I dreamt of. So I'm waiting for that look to come. So I feel, like I said before, if you show the confidence in the designer, I'm sure we'll do a better job than rather than being told what to do. It's better to kind of play around with looks, different looks. और काफ़ी लोग अब फिर वही जब traditional, especially for the Anand Karaj look and the main wedding look, lot of people are coming to us. Now people are also opting for not the label, that I don't want to look the same as the other bride, so we want to look different. For every occasion we want to look different. So I think people are approaching us for the traditional look. इस बार मैंने काफ़ी feel किया है इस season कि lots of new people wanting the traditional Punjabi look for the bride have come to us. That credit goes to you only, because जो आप पंजाबी कल्चर को एक बहुत ही मतलब सलीके से सजा के देते हैं, तो मतलब ऑटोमेटिकली फील हो जाता है कि let me be a पंजाबी bride now. And I feel वो बड़ा अच्छा भी लगता है. वो एक मेमोरी है जो आपने, I mean all your life you're going to see those pictures. So I feel ये ना लगे कि ये हम क्या बन गए थे. वही लगे कि यार मम्मा बच्चे भी कहें कि आप क्या लगते थे, क्या लग रहे थे, रॉयल लुक का है. So I feel you have to see those things all your life. हाँ. एक और ट्रेंड है मैम, जैसे भी हमने दिल्ली की मार्केट से कंपेयर करा, अभी जो बूमिंग है वो पंजाब साइड की मार्केट भी काफ़ी बूम कर रही है. पटियाला कह लें, भटिंडा कह लें, इस साइड लुधियाना भी काफ़ी, मतलब लाइक हम कहें डिज़ाइनर्स, लोकल डिज़ाइनर्स आ रहे हैं. राइट, अच्छी बात है ना. मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, बिकॉज like I said before, every designer has their touch, and everybody wants a different touch at every different occasion. अगर 4 आउटफिट मेरे हैं तो 4 किसी और के और 4 के, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर टच. अब मैं जो लुक करती हूँ या जो मेरी लुक है वो दूसरे बंदे में नहीं होएगी, वो दूसरे बंदे की लुक मेरे में नहीं होएगी. सो अपना अपना फोटे है, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड कम आउट एंड एक्सप्लोर एवरी काइंड ऑफ लुक. इसी से जैसे आपने बताया ना कि 4 मेरे से ले ले, 4 किसी और से ले, मतलब लाइक यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. लाइक कि बिजनेस है तो वही वाली बात आ गई आपकी वाली, मैंने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं लिया, वो पता लग रहा है आपकी बातों से. बिकॉज काफ़ी डिज़ाइनर्स क्या करते हैं मैम कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग एट सम प्लेस, राइट, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट इज इन पंजाब साइड ओनली, एंड दे सजेस्ट यू शुड buy everything from us,
रीज़न बिहाइंड दिस, दे गिव अ प्रॉपर रीज़न एंड जस्टिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कलर हमसे ले लिया एंड माइट बी यू विल बाय अ सेम कलर अगेन, माइट बी सेम एम्ब्रॉयडरी यू कैन बाय अगेन. सो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक ही जगह से लो, सो दैट वेराइटी हो. ये ना हो कि आप एक ही कलर पहन के हर पार्टी में जा रहे हैं या एक ही तरह का डिज़ाइन आपके पास है. सो यू शुड गो फॉर दिस. डू यू थिंक सो इट्स रियली मैटर्स कि होता है समटाइम ऐसे? तो 6 ही हैं. 6 ही रंग है. अगर मैंने 21 सूट बनाने हैं तो कहीं तो रिपीट होगा ना वो रंग. आजकल कलर्स में भी बड़ी वेरिएशन है. हाँ. एक पिंक में ही आपको 6 रंग मिल जाएंगे. हाँ. एक रेडी 6 शेड्स में आ जाएगा. सो अ क्लाइंट हरसेल्फ इज वेरी अवेयर ऑफ द कलर्स शी इज ऑलरेडी ब्रॉट. शी इज गोइंग टू टर्न अराउंड एंड से कि अच्छा मेरे पास ऑरेंज है, मेरे को ऑरेंज मत दिखाना, या आई हैव गॉट 3 डिफरेंट ऑरेंजेस, डोंट शो मी एन ऑरेंज. सो एवरीबडी ऑलरेडी नोज व्हाट दे हैव. अब वो जमाना नहीं कि कस्टमर अवेयर नहीं. कस्टमर इज वेरी अवेयर. गर्ल्स आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट लुक दे वांट, हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स दे वांट, व्हाट कलर्स दे डोंट वांट. सबको पता है. एक ही जगह से अब वो, I think it's being a little unrealistic if I expect that a bride comes and doesn't go anywhere else, only buys mine. Why? It's so much more available. रियलिस्टिक बात है. हाँ. मैं भी शॉपिंग करने जाऊंगी तो एक ही दुकान में सब कुछ नहीं लूंगी ना. मैं भी तो देखूंगी. मे बी आई लव सम डिजाइनर एंड सम आउटफिट्स. मैं उसके पास शायद 6 ले लूं, लेकिन 4 कहीं और से भी लूंगी. सो दैट्स रियलिस्टिक. ओके मैम, अभी हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब एंड चंडीगढ़ के बारे में. सो आपको क्या लगता है कि जैसे ऑब्वियसली यू आर वर्किंग इन पंजाब ट्रेडिशनल थिंग्स, सो पंजाब एंड चंडीगढ़ की मार्केट में डिफरेंस क्या है? पंजाब एंड चंडीगढ़ एक माइंडसेट है. चंडीगढ़ इज कंसिडर्ड मोर ग्लोबल, मोर अवेयर. Though that's not true, Punjab is also very aware, but एक mindset है. Also I feel अपनी city से दूसरी city जाके you get something different, so that is why people like to come to Chandigarh. And also Chandigarh is offering more variety than other places, smaller towns around Punjab. उसमें इतनी वैरायटी नहीं जितना यहाँ पर एक सिटी में उनको इतना कुछ मिल जाता है, इतना वास्ट चॉइस मिल जाती है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई अ पर्सन लाइक्स टू मेक एन एफर्ट टू कम हियर, एंड इट्स डूएबल ना. लोग सुबह आके शाम को चले जाते हैं, सो इसके लिए इजी हो जाता है लोगों के लिए. सो आई थिंक दैट्स द रीजन पीपल कम हियर मोर. ओके. सो मैम, अभी हमने लेटेस्ट देखा था, आई गेस आपने भी देखा होगा, दिलजीत दोसांझ जी ने रेड कारपेट में पूरा एक पंजाबी ट्रेडिशन को एंड पंजाबी लुक को रिप्रेजेंट किया था, एंड पूरी ग्लोबली उनका मतलब लाइक काफ़ी अप्रिशिएशन मिला था उस लुक को, राइट? सो आप कैसे देखते हैं ज़रपोश को एक ग्लोबल वे में, क्योंकि यू आर वर्किंग ट्रूली ऑन पंजाब कल्चर एंड पंजाबी ड्रेसेस. I think we already get a lot of attention and appreciation. Punjabi look, the royalty came from Punjab. Like you see, Rajasthan also gets that thing for their own royalty. But our royalty was, I guess, a little more elaborate or a little more indulgent in clothes, in jewelry. So हमारे जैसे कहते हैं कि सरदारनियों को ज़्यादा यही काम होता था कि कपड़े क्या बनाने और ज्वेलरी कौन सी लेनी है. सो आई गेस हम लोगों का माइंडसेट ही वैसा है, लुकिंग एट ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड नाइस क्लोथ्स, एंड यू वांट टू बी वेल टर्न्ड आउट, एंड यू वांट टू लुक गुड एट ऑल टाइम्स एंड व्हाटएवर. सो आई गेस दैट अप्रिसिएशन इज ऑलवेज देयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई थिंक पीपल लुक एट अस एज वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड कम्युनिटी. Yes. People who have the best lifestyles, people who also have the largest of hearts. So it's not just large in their pockets, they're large at hearts as well. So I guess we already have that name all over the world, and we do get a lot of appreciation for our culture and heritage. So ये तो पंजाब का हुआ, बिकॉज पंजाबी सॉन्ग्स के अलावा पंजाबी कल्चर भी ग्लोबली बूम कर रहा है, रिकग्नाइजेशन हो रही है. सो व्हाट अबाउट ज़रपोश का? ज़रपोश इज द सेम. आई फील वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पंजाब. Yes, we are endorsing that heritage. We as at Zarposh feel that हमारी जो heritage है वो तो दुनिया में हर कोने में पहुंचनी ही चाहिए. And through our clients, people reach us through Instagram, through our website, and they are all the time asking us for, you know, the actual traditional Punjabi look.
The brides want that look now, and in fact, lots of inter-caste or intercultural marriages are happening, where our boys are marrying girls from different nationalities. Yes, I have seen also. So that also is, the girls still want to wear the traditional bridal lehenga, even though they are not from our culture or tradition. They feel, they always say that in your clothes we feel like a princess or feel like a queen. So that is the reason they want to also have the grandeur of the Punjabi culture, the clothes and the jewelry. Right, ma'am. So I have seen abhi just off the camera कि you just like एकदम से खड़े हुए और and you have like आपने स्टेटमेंट सीधा ये था I know that what she want, what she is looking for, and वो हमने देखा भी कि आपने उनको पूरा मतलब कहें कि एक ड्रेसअप के साथ पूरा उनको रेडी करवाया. सो जब भी कोई ब्राइड आती है आप कैसे डिसाइड करते हैं व्हाट मतलब क्या उस पर बेस्ट लगेगा, कैसे उस पर बेस्ट लगेगा, व्हाट कलर शी शुड choose I for think it's herself? just an imagination in your head that you Okay. want this person to look in a certain way. So when you look at a person, I feel कि इसको अगर अब मैं इसकी जगह ये पहना दूं तो sometimes आप नहीं imagine कर पाओगे जो हम imagine कर पाते हैं. Okay. Right? So I feel a girl looks at Instagram or photos and she wants to look like that. She has that image. But if I tell her कि नहीं तो एक बार ये तो पहन के देख, the girl herself wears and says, oh wow, this looks fantastic. I think I'll go for this look. Because she hasn't imagined herself in another look till she actually tries it on. And for us, we are doing it all the time. So I look at somebody and I was, like मैंने आपको बोला अपना दुपट्टा बदल लो. Because I know that this would give you more, you know, like brightness or whatever. So I just said it. And it's looking nice with your outfit. तो एक imagination होती है. ठीक है. So you just want to kind of, I can only suggest. It is for the other person to take it or leave it. But I feel try ज़रूर करो. अगर कोई designer आपको कुछ कह रहा है, so you must try it. Whether you like it or not is बाद की बात, but try ज़रूर करना चाहिए. Don't have fixed ideas कि मैंने ये ही पहनना है और मैंने ऐसे ही लगना है. Because there are other looks that you probably haven't thought of. So one should always try. सो मैम जैसे अभी हमारा ये बात हुई थी, आपने कहा कि हाँ अभी 6 कलर होते हैं, ऑब्वियसली अब उसमें शेड्स थोड़े से डिफरेंस ऊपर नीचे होने लग गए हैं. तो जब अगर आपके पास कोई आए ब्राइट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीजन गोइंग ऑन, तो अगर उन्हें कुछ कस्टमाइजेशन करवाना है सो वो कितने टाइम पहले आपको अप्रोच करे? 3 to 4 months लग जाते हैं ब्राइडल लहंगा बनाने में. ओह रियली? इतना टाइम? मतलब लाइक ऑब्वियसली मेरे जैसे बंदे पूछेंगे इतना टाइम क्यों, क्योंकि हम तो जैसे देखते हैं हम कहते हैं वाओ दिस इज नाइस हमारे लिए. But it takes a lot of time, lot of effort, lot of thought goes into it, and lots of man hours go into it. Lots of karigars are sitting on that one project for a long time, and अब जैसे ठंड बढ़ेगी, they're using needles, they're using their hands, so they can't wear gloves and work really. Okay. Because slip करती है needle, so है. वो working hours थोड़े छोटे हो जाते हैं. Oh. Because ठंड में ज़्यादा काम नहीं हो पाता. So you know, even though we put heaters and everything in their workshops, even then ठंड है, so it's वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है. So hours कम हो जाते हैं working, so we have to keep that also in mind. So इसीलिए I feel कि पहले पूरा टाइम देके एक आउटफिट को जब आप तैयार कराते हो उसकी बात ही कुछ और होती है. Okay. That give you royalty. Yeah, but then we get enough time to do what we want to do, right? अगर जल्दी जल्दी में करोगे तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. आफ्टर ऑल मशीन नहीं है, इंसान है जो बैठ के कर रहा है, तो ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो वही कर पाएगा ना. राइट. सो अभी जैसे 2025 में आपने काफ़ी ब्राइड्स को रेडी किया एंड आई हैव सीन इन योर रील्स एज वेल. अभी बहुत अपकमिंग बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ को आप करने वाली हैं, राइट? बिकॉज आई विल नॉट टेक नेम बिकॉज आई वांट पीपल टू वॉच योर रील्स, राइट? सो आपको क्या लगता है क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा 2025 से 26 में फॉर ब्राइड्स? फॉर मी आई फील मेरा तो 85 से ही 1990 से काम शुरू किया. ट्रेंड वही है. अच्छा. हेरिटेज, ट्रेडिशन, क्लास, एलिगेंस नेवर गोज रॉन्ग. Okay. मुझे लगता है आप यू प्ले अराउंड विद कलर्स, यू प्ले अराउंड विद ज्वेलरी, यू प्ले अराउंड विद योर यू नो वेल. अब जैसे मैंने वो ट्रांसपेरेंट एक वेल दी थी, मैंने देखा अब हर रील में है. हाँ. पर वो बात ही कुछ और. व्हेन अ ब्राइड एंटर्स विद दैट होल, in fact on the Instagram somebody had messaged in this day and age why are you covering her face. It is the bride's choice. It is not me covering her face. It is a choice I give somebody, and if that person identifies with that look,
दैट इज़ व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू. किसी को कोई आजकल के ज़माने में मैनिपुलेट या ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता. हाँ एग्जैक्टली. बट जो आपने ये एक मैं कहूँ यू आर अ फैशन क्रिएटर नाउ राइट. सो जो आपने ये दिया था आइडिया, नाउ इट्स अ वेरी लाइक नॉर्मल पीपल आर गोइंग इन गुरुद्वारा फॉर आनंद कारज, दे आर होल्डिंग वेल. बहुत अच्छी लगती है. हाँ. वो बहुत एक इट्स अ पावरफुल थिंग आई फील व्हेन यू एंटर लाइक दैट होल जो हमारी ट्रेडिशन है, जो एक क्लास है, जो एलिगेंस है ऑफ कवरिंग योर फेस इज सो ब्यूटिफुल. इट लुक्स सो लवली. बाद में तो आपने उठा ही देनी है वेल, उसके बाद तो सबने देखना ही है. बट एक वो जो एक एंट्री है ना, वो एक मिस्ट्री है जो दैट इज व्हाट कीप्स इट गोइंग. इट लुक्स रियली रियली नाइस. क्यूरियोसिटी जगा के रखती है. एंड आई थिंक वो मिस्ट्री से एक बड़ी अच्छी लुक है मुझे लगता है. राइट. मैम अभी आप 35 इयर्स ऑलरेडी इस बिजनेस में हो गए. सो आप आगे 5 to 6 years में ज़रपोश को कहाँ देखते हैं? Zarposh needs to go places. It is going places, and I'm looking at maybe next our venture we're planning maybe Delhi. Soon we will probably be in Bombay, and maybe tomorrow even in America. Wow. So you have a very long vision. Yes. We wish you best for that. Thank you. And अभी जैसे हमने आपके विजन की बात करी, आपको अभी कभी ऐसा लगा कि अगर might be if I slightly change this thing, might be I can achieve this thing? I'm not very easy to change. हाँ. मुझे है थोड़ी प्रॉब्लम. अच्छा. But I feel कि evolve तो करना चाहिए with time. Like this time I had also, so this Zarposh का ये पहला season है. Right? Right. I felt that in this season that the demand increased, and also the choice of things of people that I can cater to in my traditional value that I have. I could also add a few things that I haven't added so far. So I'm going to do that in the next season. Okay. So that bring a little twist to my traditional clothes and add a few things that probably are more acceptable globally. Okay. Which brings our traditional embroideries and our traditional fabrics into the market where people who don't understand that would also like to wear. Maybe unke cuts, unke styles that are more complementing towards the global market. कुछ वैसे trends भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. तो हम ज़रपोश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मॉडर्न ड्रेसिंग स्टाइल में नाउ? मॉडर्न तो नहीं. Okay. वो मैं नहीं छोड़ सकती. Okay. बट आई फील विद अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्विस्ट इन दैट ट्रेडिशन. Okay. हमारी हेरिटेज कल्चरल लुक वही रहेगी. आई मीन आई रियली डोंट, मैं किसी को ये नहीं कहती कि मत पहनो, सबकी पर्सनल चॉइस है. बट मी आई कांट इमेजिन दैट लुक बिकॉज आई डोंट बिलोंग, आई माई माइंड डजंट वर्क दैट साइड कि मैं कटे वटे छोटे मोटे कपड़े मेरे से नहीं बनते. मैं किसी को नहीं कहती कि आप मत पहनो, सबकी पर्सनल चॉइस है. एंड पीपल हु आर डूइंग इट ग्रेट बिकॉज आई जस्ट कांट डू इट. मे बी इट्स माई हैंडीकैप. आई कांट. Okay, so what is the USP for Zarposh? One thing is that we stick to our timelines. I don't think I've ever had anybody come and say कि वो outfit तैयार मैंने डेट दी हो और in 35 years में maybe an exception one or two here and there that I've ever sent back a client saying चीज़ तैयार नहीं है. So we definitely believe कि अगर हम कुछ कहते हैं तो वो हम करते हैं, नहीं तो हम कहते नहीं हैं. So that thing I stick to. Timelines very important, quality very important, and also I feel that when you come into Zarposh, it's an experience, not just a store. So you come and experience luxury here. You don't just feel कि गए थे और आ गए. याद रखोगे आप. Definitely. So अब हम एंड में आ गए अपने इस पॉडकास्ट के. So let's do a quick short rapid fire with you, and so we get to know about. So do we have a gift hamper after the rapid fire? Surely we will give you. Okay. So अगर आपको एक वर्ड में अपना ब्राइडल बिजनेस बताना हो, so what word? वो वर्ड क्या होगा मैम? Absolutely beautiful. Biggest competition? Me myself. Okay. Anything secretly आप किसी का फैशन अडोर करते हो, फैशन स्टाइल या ट्रेंड? नहीं, आई डोंट थिंक आई एम वेरी सीक्रेटिव. अगर मुझे कोई चीज़ किसी की पसंद है तो आई विल बी लाउड इनफ टू से कि यस. या आई हैव सीन यू काफ़ी स्टोर्स के ओपनिंग में आप जाते हो पार्टीज में, वेलकमिंग. जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, अप्रिशिएट करनी चाहिए. ओके. डू डिज़ाइनर्स इंटेंशनली लेट डिलीवरीज देते हैं?
आई डोंट थिंक कोई इंटेंशनली लेट डिलीवरी दे सकता है, काम ही इतना होता है। बट मैंने एक पाकिस्तानी कोई देखी थी छोटी सी रील, उसमें वो लेडी कह रही होती है कि नखरा बहुत करते हैं अगर टाइम पे दे दो। हाँ, मैंने वो देखी थी। मैंने कहा सीखना चाहिए कुछ, पर हम सीख नहीं पाए हैं शायद वो भी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें यही बताया गया है कि आप लेट दो तभी आपकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा होगी। नहीं, और वो एडजस्टमेंट्स की टाइम नहीं होते। अगर आप जल्दी दे दो तो क्लाइंट बहुत नुक्स निकालता है। That's what she was trying to say. और अगर लास्ट मिनट दो तो they don't have the time to take out the nooks and they'll wear anything. Is it true? No, I don't think so. And I don't think कोई intentionally करता भी है ऐसे। Okay. One word for Chandigarh brides. Stylish and demanding. Okay. एक ऐसा ट्रेंड जो मर जाना चाहिए 2026। कुछ भी नहीं मरना चाहिए। It's okay. सारे ट्रेडिशंस अलाइव रहने चाहिए। पर्सनल चॉइस है। Okay. किसी की चॉइस को हम मार नहीं सकते हैं, सबकी पर्सनल चॉइस है। Okay. Velvet or organza, which is your favorite? Velvet in the winter, organza in the summer. Oh, very nice. Okay. Bobby Grewal in one word. Trying and accomplishing. Okay. If you want to dedicate one song for yourself, which song? For your life or something. जिंदगी का सफर। अच्छा, ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ओके। मल्टीवर्स स्पॉट के लिए एक वर्ड। इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चनिंग। That's awesome. Okay. Any most bridal, मतलब like कोई most challenging bridal case? चैलेंजिंग तो हर ब्राइड होती है ना, बिकॉज उसका एक इमेजिनेशन है अपने आप को देखने का। तो एवरीथिंग इज अ चैलेंज, एवरी ब्राइड इज अ चैलेंज टू कम अप टू दैट लेवल वेयर शी फील्स दैट शी गॉट व्हाट शी आस्क्ड फॉर। सो एवरी ब्राइड इज अ चैलेंज। ठीक है। ओके, वन क्वेश्चन जो अनआंसर रह गया था। यू आर द क्रिएटर ऑफ द फैशन, आई कैन से नाउ फॉर 2026 आपको क्या लगता है क्या ट्रेंड में होगा? ये ना बड़ा अच्छा टाइम है, वर्सटाइल टाइम है। वेयर अगर आप छोटा कुर्ता भी पहनते हो तो भी इन है, आप लंबा पहनते हो तो भी इन है, आप शरारा पहनते हो तो भी बढ़िया है, गरारा है तो भी बढ़िया है, सलवार भी है, चूड़ीदार पजामी भी है। सो ये टाइम बड़ा अच्छा है, वर्सटाइल टाइम है। सो ट्रेंड्स I don't think are so demanding or going up and down. It's your own style that you create, I feel. It's not about the trend, it's what you are wanting to wear. तो जो तुम्हारा स्टाइल है, जो तुम कैरी कर सकते हो, वो तुम्हारा एक ट्रेंड होना चाहिए, not what is in the market. Because market में तो सब कुछ है. So every person should have an individual trend, an individual style. And your post help every individual person to maintain Absolutely. their own trend. Absolutely. Okay. Ab last question, ma'am, because we are about to wrap up this show. Like you have a very great personality and real personality. I have feel that. And आपको और भी मतलब like multiple लोगों ने आपको approach किया होगा. I have seen that. आपने fashion shows भी किए हुए हैं. So why Multiverse podcast? Why you choose us? क्या रीजन था? I think you chose me. है ना? I didn't choose you. You chose me, but I'm glad I did. Okay, नहीं मतलब like आपने yes कहा, but like क्या था आपको convincing क्या लगा कि yes, I should say yes to them? No, you were very sweet and you were very nice and you asked me good questions कि भाई आप करोगे. मुझे कोई ऐसा नहीं प्रेशर नहीं फील हुआ कि आपको ये करना ही है या आपको ये कहना ही है या whatever. You let me speak what I wanted to speak and that's what I enjoyed. Okay, then thank you, ma'am. It's a really nice talking to you. Same here, बच्चे. Thank you very much. Thank you, ma'am. So आज हम मिले एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 35 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम किया है. गलत नहीं होगा अगर हम उन्हें शान पंजाब कहें. So ऐसे ही अनोखे किस्सों को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हमारे आने वाले पॉडकास्ट में.